Guys, please have a look at it. Crypto Wala. क्रिप्टो वाले में से काफ़ी सारे लोग जो क्रिप्टो के अंदर थोड़ा बहुत एक्टिवली होंगे वो वैभव को जानते ही होंगे, पर हम आज फाइनली हमारे ये हाथ लगे तो थोड़ा सा जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने पहली बार क्रिप्टो बाय करी थी और कौन से एक्सचेंज पे करी थी, थोड़ा जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो बताइए वैभव। Hello everyone. Hello to Crypto Wale. My name is Vaibhav, and basically I got into crypto in 2016-17 kind of era, because back then I used to work in a BPO, and there was a guy who was taking some payments, and one of my clients wanted to pay me in BTC or in Bitcoin. So that integrated me, और लगा यार बहुत सही चीज़ है. So I got interested into it and I looked for it. So then I saw the price of Bitcoin pumping from $1,000 to $3,000, $4,000, $5,000. बोला यार ये बहुत सही चीज़ है. So I really got in that, it got really interested in me, and I got to know चलो ठीक है, it could be an investment opportunity or it could be an asset class. So then I started to buy Bitcoin. My first exchange was Zeppay. That was a famous exchange quite back in 2017. So I bought my first Bitcoin in Zeppay in 2017. And my first investment in crypto, apart from Bitcoin, was Electronium. There was a project going, had a very great hype in 2017. मोबाइल माइनिंग वाली है। Exactly, mobile mining app, and so that was my first, stepping stone, as a stepping stone in my crypto for Electronium. It gave us 26 times returns, like 26x. But we didn't knew that we also have to sell it, because we were told that so this shit is going to hit 100x. We were waiting for it to get hit to 1000x, 100x. So we never sold off. But yeah, that was a good experience, learning experience. तो आपने इलेक्ट्रॉनियम की बात करी तो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज में आपका भी कुछ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के बारे में जानता है वही जानता है, बाकी को लगेगा कि क्या है। जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, क्रिप्टोपिया एक्सचेंज 2019 वैलेंटाइंस डे वाले दिन उसकी खबर आ गई कि हाँ जी हैक हो गया है, और अभी तक चल रहा है। तो 3-4 साल हो गए हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। सो बैक टू योर जर्नी, अभी आप काफ़ी कुछ कर रहे हो, और एग्जैक्टली जो आपके इस समय जो मेंटल एनर्जी है, जो आपका ब्रेन यूटिलिटी है, अभी वो कहाँ पर है? अभी कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है? और 1 साल बाद हाविंग आने वाली है, उसके बाद के नेक्स्ट 500 डेज वुड बी द बुल पीरियड। सो व्हाट आर योर टाइम एंड एनर्जी? अभी आपका कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी जा रहा है? Cool. So as you all know that I run a marketing company called Desi Crypto. So the marketing and all these aspects are sorted right now. So I'm focusing on building a product. It will be a crypto trading or crypto analysis based product. So I'm shifting my energy to that, because marketing and everything is sorted now. And apart from it, I'm more into education right now, like providing free education and free knowledge to the upcoming newbies or upcoming youngsters. That because I always tell them that making money is very much important. Be it ठीक है, you can go and shout community, and you can be a leader and you can be a neta and keep on shouting community and all these things. Making money is the ultimate goal, and it is very important. At least I can say it for myself. So I teach them how to make money and how to start giving your services, how to build a unique skill, not just getting into the rat race, and not just getting into the the ship race kind of stuff, but yeah, getting into creating some unique stuff. And I'm more focusing on the education part right now. So आप भी डेवलपर काइंड ऑफ अ गाय तो कभी रहे नहीं, I correct? Basically, I am from technical background. I am a BCA, Bachelor's in Computer Application. I hold a diploma in software engineering. I hold a diploma in networking engineering, and I also hold a diploma in ethical hacking. But unfortunately or fortunately, I was I got into a job which required digital marketing aspects back in 2018 or 17. So from that journey, I got landed into crypto marketing aspect, be it as ambassador, be it as project manager, or be it as anything. So that's exactly how my service journey started in crypto. So I got landed into marketing. But I would say वो बढ़िया ही हुआ ना, आप जो कर रहे हो और काफ़ी लोगों को एजुकेट कर रहे हो,
तो वो बढ़िया ही हुआ। अब जैसे बात करें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, लाइक जिसने अपनी 12th अपनी कंप्लीट करी है, वो BBA कर रहा है या फिर कोई और कोर्स कर रहा है जो नॉन टेक है आई वुड से, सो उसके लिए क्या एडवाइस करोगे? अगर वो अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने वाला है तो क्या करे वो? सबसे बेबी स्टेप्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से रैदर देन इन्वेस्टिंग देयर डैडीज मनी, वो अपने पेरेंट्स का पैसा ना इन्वेस्ट कर कर अगर वो क्रिप्टो के अंदर कहाँ कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है, सो व्हाट आर द बेबी स्टेप्स जिससे उसको हेल्प होगी और रैदर देन लर्निंग वो शायद साथ में कुछ अर्न भी कर सके ताकि वो अपना पैसा लूज़ करे रैदर देन देयर पेरेंट्स मनी। सो व्हाट आर योर एडवाइस फॉर देम? Very good question. Not many people ask this question because they are more focused on the trading aspects. But I would rather say, even if you want to trade, how much money you can make, how much amount you can invest, $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. That's the maximum. I don't think any dad or any parents would give you more than that money, right? So the best part to enter into crypto is not by trading. For the beginners, learn the skills, learn some aspect, get into the community and start giving out your services. Be it anything, be it a community management, community moderator, content creator, social media management, anything. Join multiple projects as ambassadors. Hunt for, go and start hunting for bug bounty programs, or even start hunting for airdrops or bounties. These things are exactly for non-tech guys because, people think that crypto and all these things are very much tech friendly or very much tech oriented guys. But technical guys are, restricted to development. It is not. Like, if you want to make money, you can be a non-tech guy and you can make tons of money. So I would rather say, learn any skill and go out and reach out to projects and start, offering them for free. Let's say, I'll work for a company and I'll work for a project for free for 1 month. In 80 to 90% of the cases, they'll hire you or they'll give you some money at the second month or at the third month. एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट लाइक बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी, इट इज़ टाइम इज़ मनी कि आप अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स वहाँ पे शो तो करो, सो दे विल हायर यू। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से सैलरी चाहिए, आप सैलरी के लालच में आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी। लाइक एज यू सेड कि कोई पेरेंट्स अपने बेटे को या बेटी को नहीं देने वाला 2-3-5 हज़ार डॉलर, वो भी हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप खुद ही वहाँ से अर्निंग स्टार्ट करना, स्किल अपने आप को डेवलप कर लोगे, चाहे वो कोई भी स्किल हो, और यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे कि उसको डेवलपमेंट आनी चाहिए या उसको ट्रेडिंग आनी चाहिए, उसको बेसिक अपना वो टाइम तो दे, उसको खुद अभी तो पता ही नहीं उसको कि उसके स्किल है कौन से, अभी तो वो अपने स्किल शार्पन करेगा या क्रिएट करेगा तब जाके तो वो कुछ कर पाएगा। एब्सोल्युटली यार, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, देखो कुछ नहीं आता आपको। सपोज आपको क्रिप्टो के, चलो आपने बेसिक नॉलेज ले लिया, बेसिक यू हैव स्टार्टेड लर्निंग क्रिप्टो, इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न क्रिप्टो, कम टू मी, आई विल डेफिनेटली गाइड यू अप। एंड बहुत सारे कोर्सेज है यूट्यूब पे, बहुत फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। गो टू यूट्यूब, गो टू गूगल, एनीथिंग, एंड यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट क्रिप्टो। Go to any project, any big project, any small project, and start telling them, कि we will be managing a community for free. टेलीग्राम मॉडरेशन तो आता है, स्पैम डिलीट करना आता है, वो तो क्रिप्टो की चीज़ हमने जीवन भर इन बच्चों ने, जितने भी बच्चे कह रहा हूँ, छोटे भाई बहन हो गए हमारे, तो इन लोगों ने दुनिया भर का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई पता नहीं कौन कौन से और प्लेटफॉर्म आ गए, वो नहीं छोड़े। वही सेम काम अगर हम यहाँ पे करोगे तो लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो सकती है, और उसकी अपॉर्चुनिटी को ये समझ ही नहीं रहे। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कम्युनिटी, लोग समझते हैं यार कम्युनिटी मॉडरेटर बनूंगा, 8 घंटा बैठूंगा मैं उसमें, ये कराऊंगा। पता है क्या, आप ना अब ये देख रहे हो कि मुझे भी $200 मिल रहे हैं कम्युनिटी मॉडरेट करने के, बट वो ना आपकी स्टार्टिंग फेज़ है। जब आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे ना, यू विल बी मेकिंग $1,000 पर मंथ जस्ट बाई मैनेजिंग कम्युनिटीज़, और 8 घंटे की शिफ्ट में आप 4-5 प्रोजेक्ट से मैनेज कर रहे हो। उसके बाद जब आपका नाम बढ़ेगा, उसके बाद जब आपकी रीच बढ़ेगी, प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, यू विल क्रीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस। एंड मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप्स मॉडरेट करके दे आर मेकिंग $8,000-10,000 पर मंथ। ये तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। लाइक उन्होंने तो अपनी खुद की टीम बिल्ड कर ली होगी, उसके बाद हैंडलिंग के लिए दे दी होगी। मतलब आप एक कोई सर्विस देना स्टार्ट करो, जैसे ही उसको लगे कि आप कैपिटलाइज कर पा रहे हो, स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस ऑन इट, उसका सर्विसेज लॉन्च कर दो मार्केट में, दैट्स इट। स्टार्ट रीचिंग आउट टू, यार मैं हमेशा बोलता हूँ, बी बेशरम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर बेशरम नहीं है तो धंधा नहीं बना पाओगे, या कुछ काम नहीं, किसी भी काम नहीं कर पाओगे। शर्म करनी नहीं चाहिए, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। पूरे कर यार मैं खुद बता दूँ, देखो मेरे को ना, मेरी बहुत जैसे आपको कहा, मेरी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ी टीम है, तो मैं चाहूँ तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि व्हाट्सएप में ना ब्रॉडकास्ट कर दूँ उससे ग्रुप में जाके,
कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है ना कंपनी से या मेरी तरफ से, मैं खुद जाके चिल करता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपना खुद का मार्केटर नहीं हूँ ना सबसे बड़ा, मेरे लिए कोई मार्केटिंग क्यों करेगा या मेरे को प्रमोशन कोई क्यों करेगा। और सबसे बड़ी बात है यार, लोग बोलते हैं कि यार नहीं हमें पैसा नहीं देखना, ठीक है शुरू में पैसा नहीं देखना चाहिए, शुरू में लर्निंग पे फोकस करो, बट यार पैसा ज़रूरी है। शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है ना, मैं हमेशा चिपकाता हूँ, फर्स्ट बी रिच एंड देन बी अ फिलोसोफर। सो वो लॉन्ग टर्म गोल्स और वी आर हेयर फॉर द रेवोल्यूशन, वी आर हेयर फॉर रेगुलेशंस, वी आर हेयर फॉर CBDC, ये वो सब कुछ करो, पहले पैसा बना लो। ये हमारी कम्युनिटी कंप्लीटली उनका मेन फोकस पैसे पे ही है। पैसा ही पैसा होगा। नहीं, पर जोक्स अपार्ट, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही रही लर्निंग के अंदर कि जो भी नॉन टेक गाइज हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करती है, ज़रूरी भी नहीं है कि उनको सब कुछ सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें ये नहीं जानना कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है या फिर हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। तुम्हें खाली ऊपर का पढ़ना है कि ब्लॉकचेन में ये होता है, दैट्स इट। उसके ऊपर अब तुम फंडामेंटल्स पढ़ने स्टार्ट करो, यू डोंट हैव टू स्टडी द टेक्निकल्स ऑन इट। तुम्हें समझ में आ गया ब्लॉकचेन में कैसे ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश होती है, कैसे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है, दैट्स इट, समझ में आ गया। अब तुम्हें डेप्थ में जाना है, क्योंकि तुम्हें कोडर नहीं बनना है, तुम्हें टेक्निकल्स क्यों सीखने हैं। तुम जाके मार्केट रिसर्च करो ना कि कौन सा टोकन्स कितने पंप किए, उसने क्या परफॉर्मेंस की है, इस टोकन की क्या प्राइस है, इस प्रोजेक्ट की क्या विजिबिलिटी है, इस प्रोजेक्ट को हम कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हंट करो। गो ऑन टेलीग्राम, गो ऑन ट्विटर, गो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट, डिस्कॉर्ड, जहाँ पे एक्चुअल क्रिप्टो ज्ञान मिलता है। ब्लॉकचेन इज डिफरेंट, क्रिप्टो इज डिफरेंट। क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को हंट करो, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करो कि यार ये मैं इसको क्या दे सकता हूँ और इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स इट। सो इट्स ऑल अबाउट कि अपने टाइम एनर्जी एफर्ट्स लगा के तो देखो, ज़रूरी नहीं है वो टेक्निकल्स में ही हो। वो अगर जो भी एक्टिविटीज़ अपने जो हम सारे टाइम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लगे रहता है, अगर वो उसका कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आने वाली जर्नी। ठीक है, सो आई होप वी शुड रैप अप दिस सेशन। Thank you so much guys, please have a look at it, crypto क्रिप्टो वाले big fan.